So hello students, in this video we are going to learn about chemical kinetics class 12 chemistry. So myself Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience, and have been guiding a student for both physics and chemistry since 2016 onwards, and the student who had enrolled under me had made into good colleges of India and abroad. So in today's sessions we are going to start with a very important concept called rate law. For understanding a rate law, we must understand first average rate of reaction, instantaneous rate of reaction, rate of formation, rate of disappearance. Those are the associated concepts to understand the rate law. So with this note, let us start our class today with a basic definitions of chemical kinetics. What do you mean by the chemical kinetics? So let us understand chemical kinetics. So chemical kinetics is that branch of study, the branch of study of chemistry. So chemical kinetics इसको बोलते हैं the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and the mechanism through which they occur, and the mechanism by which they occur, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हेल्प करता है हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के? रिएक्शन रेट, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था SN1, SN2, RDS. So those mechanisms are actually a chemical kinetics concept. So chemical kinetics have given way to those concepts, SN1, SN2. So chemical kinetics is the basic concept to understand the organic reactions or any chemical reactions which is applicable in inorganic chemistry as well. So in today's sessions we are going to deal with those concepts, that how RDS, what does RDS stand for and what does RDS do. So let us get into the details first. So the next important definitions which we must know is the rate of reactions. The rate of reactions. So rate of reactions is what? Let us understand rate of reactions. So rate of reactions is defined as the change in concentration. The rate of chemical reactions, the rate of chemical reactions is defined as the change in concentrations of reactants or products per unit time. तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें कि मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, कि मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें, ये कहना चाहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर निर्भर करता है? चेंज इन कंसंट्रेशन
of reactants or products per unit time in a given time taken for the change, or we can say time taken for the change. ठीक है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, सपोज कीजिए कि ये रिएक्टेंट है, यहाँ से देखिए ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और change in concentration of reactant upon change in time, or we can say change in concentration of product upon time। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो डेफिनेशन है आपका, ये जो डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। हम लोगों को प्रेशर के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको हम लोग मोल्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मोल्स के टर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं करते इस चैप्टर में। हम लोग केवल मोलैरिटी और प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, सो द चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल्स में कर सकते हैं। मोलैरिटी में तो इस चैप्टर में करेंगे ही करेंगे, और हम लोग प्रेशर के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, मोलैरिटी के लिए मोल्स पर लीटर, प्रेशर के लिए एटीएम यूज करेंगे। तो ये माइनस और ये प्लस क्यों आ रहा है, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन समझिए क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो आप समझिए कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे डिफाइन किया गया है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो अब हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, the change in concentration, the change in concentration of reactant of product, of reactants or product, reactants of product for a defined interval of time, for a specified interval of time, specified interval of time। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। जैसे एवरेज वेलोसिटी होता था फिजिक्स में, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, 2 डिफाइंड इंटरवल होता था, 10 से 10:30 बजे तक, 11 से 11:30, ये डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे एवरेज। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर ए स्पेसिफाइड इंटरवल of time is called average rate of reaction, is called average rate of reactions। ठीक है, तो अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, सपोज करो एक मिनट इसको डिलीट करते हैं। सपोज करो कि हमको इस रिएक्शंस के लिए ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है हमारा, ए से बी की तरफ कोई रिएक्टेंट हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। ए क्या हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा क्या प्रोडक्ट है। अगर हम इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो इसका लिखना चाहेंगे तो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। माइनस क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ए का कंजम्पशन हो रहा है।
ए यहाँ पर घट रहा है, तो ए का कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। अब बी हमारा क्या हो रहा है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, डेल हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डेल फॉर एवरेज, डेल फॉर एवरेज, ये हम डेल किसके लिए यूज करते हैं, एवरेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हम लोग डेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर एवरेज वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ कंजम्पशन हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है ए का, तो इसलिए माइनस लिखा जा रहा है, प्लस क्यों लिखा जा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाएं तो किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए कि अगर हमारे पास ग्राफ है इस तरह का, तो हम लोग इसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ है, तो ये हमारा सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इस तरह से बढ़ रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और रिएक्टेंट हमारा इस तरह से घट रहा है, इस तरह से। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये कांस्टेंट होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ हमारा रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हमारा घट रहा है और प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखा गया है और रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखा गया है। तो ये हमारा प्लॉटिंग हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अगर हम इसको और अच्छे से डेप्थ में अगर एनालाइज करें कि फॉर ए पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, कि जैसे कि हमारा ये ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, ये रिएक्टेंट के लिए हमारा ग्राफ है, तो ये ग्राफ अगर हमारा रिएक्टेंट का किस तरह से हो रहा है, इस तरह से घट रहा है रिएक्टेंट का ग्राफ, ये रिएक्टेंट का ग्राफ यहाँ से घट रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घट रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर अगर हम लोग रिकॉर्ड करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन कितना है और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टाइम कितना है, वो रिकॉर्ड कर। सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन हमारा क्या है, x2 मानते हैं, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारा कंसंट्रेशन x1 है, और पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या हो जाएगा, t2, और इसका क्या ले लेंगे, t1। ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो अगर हम इसका एवरेज रेट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट इसका इस तरह से लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है, खपत हो रहा है, और चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, फाइनल हमारा कौन सा हो जाएगा, फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। ठीक है, फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, t1 माइनस t2। इस तरह से आप हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली इसको माइनस का कम्युटेट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रोडक्ट का भी अगर लिखना चाहेंगे तो इस तरह से प्रोडक्ट का भी लिख सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट का हम लोग लिखना चाहेंगे, ये है प्रोडक्ट का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, टाइम के साथ। तो टाइम का ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से इंक्रीज करेगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम यहाँ पे इसका रिकॉर्ड करते हैं, टाइम t1 है और कंसंट्रेशन कितना है, x1। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t2 पर अगर हम रिकॉर्ड करें तो इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन x2। तो इसका हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे x2, फाइनल मतलब x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, t2 माइनस t1। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल x बाय डेल t। ठीक है, इसको भी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी भी स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें समझे रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। सपोज कीजिए कि हम लोगों को समझना है रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट एट विच a product is formed is called rate of formation. Rate of formation. और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का बात करें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। The rate at which a reactant is consumed जिसका कंजम्पशन हो रहा है उसका डिसअपीयरेंस हो रहा है, या इसको हम लोग कंजम्पशन ही बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन हो या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो, सबका मतलब एक ही होता है, कंज्यूम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, सपोज कीजिए अब हम लोग को लिखना है कि किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। ये सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है PCl5 गिव PCl3 और Cl2, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो जाएगा, माइनस डेल PCl5 डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू डेल PCl3 बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल Cl2 बाय डेल टी। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस हो गया। अगर हम लोग सपोज कीजिए कि अगर हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें, इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि सपोज कीजिए कि हमारा जनरल इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशन जैसे कि AA BB gives CC प्लस DD। तो इस रिएक्शंस के अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है A, तो माइनस लगाएंगे 1/A डेल A बाय डेल टी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट B है, B के साथ B माइनस 1/B डेल B बाय डेल टी, B बाय डेल टी। इसका कोएफिशिएंट क्या है C, तो हम लोग लिखेंगे 1/C डेल C बाय डेल टी। इसका कोएफिशिएंट है D, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन हो रहा है, C और D का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए प्लस लगेगा, तो प्लस 1/D डेल D बाय D डेल टी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन लिखना चाहें, या रेट ऑफ कंजम्पशन या डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंजम्पशन अगर लिखना चाहें, रेट ऑफ कंजम्पशन, तो वो कैसा होगा, इसमें कोएफिशिएंट का डिवीजन नहीं होगा,
यहाँ पर जो कोएफिशिएंट दिख रहा है ये कोएफिशिएंट का डिवीजन नहीं होगा, माइनस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ अपीयरेंस का बात करें या रेट ऑफ फॉर्मेशन का बात करें, फॉर्मेशन या अपीयरेंस एक ही चीज़ है, अपीयरेंस लिखा है एक ही मतलब है, फॉर्मेशन के बराबर है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट को नहीं जोड़ना है, प्लस डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो ये हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजम्पशन। तो ये एवरेज रेट का पूरा हम लोगों ने निकाल लिया कि किस तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन कैसे निकाला जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं इंस्टैंटेनियस पे। इंस्टैंटेनियस क्या होता है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस रेट एवरेज रेट की तरह होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकाला जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इंस्टैंटेनियस rate of reactions। ठीक है, तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस क्या बोलते हैं इसको? द रेट ऑफ चेंज, द रेट of change of concentration, the rate of change of concentration of any of the reactants or product at a particular instant of time, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालेंगे, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि इंस्टैंटेनियस रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंस्टैंटेनियस रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट। ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज रेट। ये एवरेज रेट के बराबर होता है, बट द टाइम शुड बी टेंड्स टू 0। मतलब वी आर टॉकिंग फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी क्षण का बात कर रहे हैं। तो क्षण के समय में हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब समय एकदम बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो जिस समय मतलब जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम लोग बात करते हैं वो किसी क्षण का बात करते हैं, तो क्षण में टाइम को बिल्कुल 0 के निकट माना जाता है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग मैथमेटिकली डालते हैं तो हम लोग जैसे इसको कैसे डाल सकते हैं? तो ये क्या बनेगा? एवरेज रेट इंस्टैंटेनियस रेट बन जाएगा। तो इंस्टैंटेनियस रेट क्या बनेगा? तो अगर हम लोग इसमें डेल सपोज कीजिए कि ये हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ हम लोग जा रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अगर हम लोग को इंस्टैंटेनियस रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रेट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 फॉर डेल आर बाय डेल टी, माइनस लगा देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू लिमिट, मैथमेटिक्स में एक ऑपरेटर होता है लिमिट फंक्शन, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 फॉर डेल पी बाय डेल टी विच इज एक्चुअली इक्वल टू, ये दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी आर बाय डी टी। ठीक है, माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। रिएक्टेंट खपत हो रहा है इसलिए माइनस लगता है, और प्रोडक्ट हमारा बढ़ता है तो इसलिए हम लोग प्लस लगाते हैं। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंस्टैंटेनियस रेट हो जाएगा। तो इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उस समय रिएक्शन का क्या रेट होगा।
ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे सपोज कीजिए किसी एक का ही ले लेते हैं, रिएक्टेंट का ही ले लेते हैं, तो ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं इसका रिएक्टेंट का, ठीक है। इस तरफ हम लोग प्रोडक्ट का ले लेते हैं, इस तरफ प्रोडक्ट का ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस लोग का ग्राफ प्लॉट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा टाइम, और यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, इस तरह से घट रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ का बात करें तो किसी एक का ही बात करते हैं, तो इसका अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालें, यहाँ से देखिए ये ग्राफ है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम लोगों ने निकाला है इसका, ये ग्राफ का टेंजेंट। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर टाइम t1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू dr/dt, dr/, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम t ले लेते हैं तो बेटर रहेगा, dr/dt, dr/dt, ठीक है। ये घट रहा है तो माइनस लगा देंगे, dr/dt, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालना चाहें तो प्रोडक्ट के लिए भी वैसे ही करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ पर टाइम लिखेंगे, ये टाइम है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस तरह से निकाल सकते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, ये हमारा अगर टेंजेंट है, ये थीटा है, अगर हम थीटा लेते हैं तो ये क्या, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे dp/dt, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर भी वही है कि ये ट्राइंगल हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफिकली निकालते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग जिस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, जनरलाइज्ड हम लोग इसको करते हैं कि जनरल इक्वेशंस के लिए किस तरह से लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, फॉर द जनरल रिएक्शंस, ठीक है। फॉर द जनरल रिएक्शंस अगर हम लोग बात करें, फॉर द जनरल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस का बात करें तो रिएक्शन रेट कैसे लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास रिएक्शन है AA BB गिव्स CC प्लस D। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या, -1/A dA/dt, dA/dt इज इक्वल टू -1/B। माइनस आप समझ रहे हैं क्यों, माइनस क्यों लिख रहे हैं, इससे कि कंजम्पशन हो रहा है, dB/dt इज इक्वल टू प्लस 1/C dC/dt इज इक्वल टू 1/D dD/dt। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशंस का बात करें तो लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस का बात करें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस, इसमें कोएफिशिएंट के साथ नहीं खेलना है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ कोएफिशिएंट खेलना है, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन के साथ कोएफिशिएंट का खेल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है इसको।
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी डी बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी जनरल इक्वेशंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उनसे आइडिया हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि फॉर द रिएक्शन N2O5 2NO2 गिव्स द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया हुआ है 6.25 × 10⁻³ मोल। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 हमें निकालना है। ये मेडिकल एग्जाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पहले होता था, वही 2010 का प्रॉब्लम है ये। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को लिखेंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे। ठीक है, N2O5 गैस गिव्स 2NO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी N2O5 बाई डी टी। ठीक है, N2O5 बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी NO2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये कोएफिशिएंट इसका 1.2 है। ठीक है, तो इसीलिए उसको लिखना पड़ेगा DO2 बाई डी टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2DO2 बाई डी टी। हमें क्वेश्चन में किसका दिया हुआ वैल्यू, डी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इसका वैल्यू दिया हुआ हमें। किसका वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, डी माइनस डी N2O5 बाई डी टी किसके बराबर है, यहाँ देखिए ये किसके बराबर है, 6.25 × 10⁻³ 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट कैसे आता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें किसका फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कोएफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, डी NO2 बाई डी टी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस में क्या है, डी N2O5 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को डी NO2 बाई डी टी निकालना है, ये वैल्यूज निकालना है। तो इस वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को यहाँ सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा रेट ऑफ रिएक्शन आपस में बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 वहाँ पर जाएगा, तो डी NO2 को कैसे लिख सकते हैं, डी NO2 बाई डी टी इज इक्वल टू 2 × माइनस डी N2O5 बाई डी टी। ये वैल्यू कितना है, 2 × माइनस, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास 6.25 × 10⁻³। यहाँ पर गुना कर देंगे 6.25 × 10⁻³ what we get if we calculate 6.25, 1.25, that is equal to 1.25 into 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो what we get 6.25 into 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यूज। 6.25 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 5 to 4 6 to 12 के आसपास आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यू वहाँ से लिख दिया मैंने 10.2। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 लिखना है हम लोगों को, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अगर हम लोग लिखें तो वो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 में हम लोग वो लिखने के लिए ये 2 है, आपको दिख रहा है यहाँ पर 2, ये 2 दिख रहा है, इसको इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, DO2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस
dN2O5 बाई dt इंटू 1/2, क्योंकि 2 वहाँ पर न्यूमैरेटर में था, वहाँ पर 2 न्यूमैरेटर में था। देखिए ये न्यूमैरेटर में, तो ये जाएगा डिवाइड होकर के, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, इसके 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके डिवाइड हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका हम लोग लिखेंगे 6.25। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो आंसर आ गया इसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन का, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। तो हम लोगों ने इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को भी, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को भी निकाला, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को भी निकाला। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमारा दिया हुआ था, रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला। तो इस तरह का प्रॉब्लम बनता है इस सारे कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हमने देखा, और जब हम लोग सीरीज चलाएंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर पूरा देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे तरफ, रेट लॉ को समझते हैं। रेट लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो वो टॉपिक को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेट लॉ पर आते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, अगर रिएक्टेंट अगर कोवैलेंट है तो रिएक्शन विल बी क्वाइट स्लोअर, इफ इट इज आयनिक द रिएक्शन विल फास्ट। आयनिक कंपाउंड्स shows faster reactions, ionic compounds shows faster reactions, while covalent compounds are much slower. Covalent compounds are much slower. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी बढ़ेगा। ठीक है, जनरली इट इंक्रीजेस। टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल। क्या मतलब है इसका, कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, डबल या ट्रिपल हो जाएगा। बट जनरली वी टेक इट एज डबल्ड। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन is doubled or tripled. ठीक है, tripled, but in most cases it is doubled. ठीक है, presence of catalyst provides a lower energy barrier for making reaction to happen. Presence of catalyst क्या करता है, किसी भी रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता है और प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेटिव पाथ फॉर रिएक्शन कंप्लीशन। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ with a low energy, alternative
path with lower energy barrier with lower energy barrier and thus involves larger number of molecule to cross it and take part in the reaction. पचमा क्या है? सरफेस एरिया. More surface area, more exposure for the reactants. So rate of reactions is directly proportional to increase in surface area. So rate of reaction. So the rate of reactions किस पर निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. अगर if any one of the reactant is solid, it will offer a larger surface area, the rate of reactions will increase, enhances. ठीक है, surface area. ठीक है, so this is all about the factor affecting the rate of reactions. Now let us consider a rate law. Now let us understand what is rate law. अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि डिपेंडेंस. इसमें क्या है? डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट on concentration of reactant, on concentration of reactants. Dependence of reaction rate on concentration of reactant. तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से किस फैक्टर से ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है. तो फर्स्ट इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन रेट वाज मेड बाय लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन. तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज द जेनेसिस टू अंडरस्टैंड द रेट लॉ. ठीक है, तो वो एक जेनेसिस है, वो एक मतलब एक बोल सकते हैं कि रेट लॉ एक प्रोजेनी है ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन का इन बायोलॉजिकली इफ यू टॉक. तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है. लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of एक्टिव मासेस. एक्टिव मास हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मोलैरिटी के लिए या पार्शियल प्रेशर के लिए यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं? एक्टिव मास हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं? मोलैरिटी के लिए यूज करेंगे या पार्शियल प्रेशर के लिए यूज करेंगे. ठीक है, पार्शियल प्रेशर. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस of reacting species ठीक है, of reacting species
with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of that species in the stoichiometric coefficient of that species in a chemical reaction. मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी अगर हमारा देता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसका लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस मतलब मोलैरिटी हो सकता है। मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मोलैरिटी के हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। और पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग केवल एक स्मॉल p लिखते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज और इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा जाए तो इसका 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। ये बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पर पावर लग जाएगा 1, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शंस विल बी इक्वल टू k A⁴ ठीक है। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो पावर 1 लगाया है वो एप्लीकेबल है रेट लॉ के अंदर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए या वन स्टेप रिएक्शन के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हमारा ये है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और रेट लॉ जो है हमारा है जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह ही है, लेकिन वो किस पर बेस्ड होता है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को समझिए। जब सपोज कीजिए कि हम लोग किसी भी क्लास 7 में पढ़ा जाता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास रिएक्शन है AA गिव BB CC। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इज इक्वल टू k A⁴ B⁴ B और C⁴ C होता है, ठीक है। ये हमारा कौन बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ इसको इसको बोलता है कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल नहीं है रेट लॉ। ये क्या होता है, रेट लॉ बोलता है कि हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को ही कंसिडर करेंगे फॉर राइटिंग ए रेट ऑफ रिएक्शंस। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का फेल होने का यही रीज़न है क्योंकि वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर निर्भर करता है, और रेट लॉ जो है हमारा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है। तो रेट लॉ को अब हम लोग समझते हैं इसके अंदर में कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ हमारा क्या होता है, तो रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ बोलता है कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। द रेट लॉ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्व on the experimental observations, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो रेट लॉ डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं या रेट इक्वेशंस बोलते हैं, रेट लॉ। सो इट इज
called rate law और रेट इक्वेशंस। इसको रेट इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो इसका दो नाम है, एक रेट इक्वेशंस है और एक रेट लॉ है। तो हम किसी भी रिएक्शंस के लिए रेट लॉ अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं रेट लॉ? सपोज कीजिए कि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, हमारे पास एक रिएक्शंस है जिसका ए बी मिलके प्रोडक्ट बना रहा है। तो लॉ मास एक्शन तो बोलता है कि इसका कोएफिशिएंट चढ़ा दिए। तो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस रेज टू द पावर विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ए के बराबर नहीं होता है, ना ही बी के पावर होता है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किस में होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन में होता है। रेट लॉ में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है। तो हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी टर्म्स लेते हैं पी और यहाँ पर ले लेते क्यू। समझे कि इसका डिपेंडेंस किस पर है? pth पावर ऑफ ए एंड qth पावर ऑफ बी। तो रेट लॉ अगर हम लिखेंगे इसका तो रेट लॉ इज इक्वल टू के ए पर पावर पी बी पर पावर क्यू। लेकिन ये रेट लॉ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर तभी हो सकता है इफ द रिएक्शन रेट इज एलिमेंट्री। इफ द reaction is एलिमेंट्री हो, लिखा रहे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, या आपका लिखा रहे कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, या आपका सिंगल स्टेप भी लिखा जा सकता है, या आपका लिख देगा कि ये एक आरडीएस है, या आपका एक स्लो स्टेप है। तो ये भी आपका एलिमेंट्री रिएक्शंस में आता है। ठीक है, स्लो स्टेप है या आरडीएस बोल देगा। आरडीएस का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस भी हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। या हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी क्या होता है? एलिमेंट्री के कैटेगरी में आता है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? एक स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप। कोई भी एक स्टेबल से अनस्टेबल कंपाउंड बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही स्लो स्टेप होता है, बहुत ही स्लो, क्योंकि वो होना नहीं चाहता, अनस्टेबल की तरफ मूव नहीं करना चाहता है। तो उसको अनस्टेबल बनना नहीं चाहता, तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती जब अनस्टेबल बनाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेप इन्वॉल्व होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स कब तक वेट करेंगे? जब तक क्लास का सबसे स्लो लिखने वाला बच्चा उस पूरे जो क्लास में टीचर डिस्कस करें उसको लिख ना ले, तब तक वो क्लास आगे नहीं मूव कर सकता। तो ये स्लो स्टेप का मतलब यही है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पूरे क्लास को कौन डिटरमाइन कर रहा है? वो सबसे स्लो लिखने वाला बच्चा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। या इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस है। ठीक है, तो अगर हमारा इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तब हम रेट लॉ को कैसे लिख सकते हैं? रेट लॉ विल बी इक्वल टू पावर रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, पावर रेज टू एक्टिव मासेस power raised to active masses is equal to stoichiometric coefficient. ठीक है,
तो इसी रिएक्शंस के लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखना चाहें, इस रिएक्शंस के लिए, तो इस रिएक्शंस के लिए अगर हम लोग रेट लॉ लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, अगर लिख देगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या वन स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन या इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो उसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास ये रहेगा ए बी बी, ये अगर हमारा प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा रहेगा कि ये आरडीएस है या स्लो स्टेप है या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा रहेगा, तब उस केस में हम लोग रेट लॉ जो लिखेंगे वो किसके बराबर लिखेंगे? रेट लॉ इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर ए बी पर पावर बी। ठीक है, तो रेट लॉ इज इक्वल टू के ए पर पावर ए बी पर पावर बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर के क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये यहाँ पर के क्या है? रेट कांस्टेंट है। के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट, के हमारा रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तक डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो के इज द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? दी रेट लॉ इज इक्वल टू के ए पर पावर ए बी पर पावर बी। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी कर दें विच इज इक्वल टू 1, तो रेट लॉ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के बराबर लिख सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, दी रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शंस is equal to rate law is equal to the rate of reaction is equal to rate law और rate of reaction एक ही चीज है। when concentration of each of the reactant is unity, when concentration of each of the reacting species is unity। जब हम इसको यूनिटी रखेंगे रिएक्टिंग स्पीसीज को, तो रेट लॉ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट के बराबर रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को ये भी लिखने का तरीका होता है। तो याद रहेगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर तभी होगा जब रेट लॉ हमारा कैसा हो? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हो, आरडीएस के लिए हो, सिंगल स्टेप हो या एलिमेंट्री रिएक्शंस हो। और रेट ऑफ कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी रेट भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं जब रेट कांस्टेंट हो इक्वल टू रेट लॉ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट। ठीक है, स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कब बोला जाता है? जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी बराबर हो जाए 1 के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेट लॉ। तो रेट लॉ को समझिए किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट का हम लोग यूनिट निकालते हैं। तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस कैलकुलेट द यूनिट। तो हम लोग निकालते हैं यूनिट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पर क्या निकालेंगे? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट।
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एन। कोई भी हो सकता है, हमारा पावर कुछ भी हो सकता है। एन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। एन क्या है हमारा, वेयर एन क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग को के निकालना है तो के को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन पर पावर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर पावर एन। रेट को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है हमारा, इस रेट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर, ठीक है, मोलैरिटी। ये हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या लिखेंगे, मोल्स पर लीटर पर पावर एन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मोल बाय लीटर इंटू मोल पर पावर एन इंटू लीटर पर पावर एन। ये ऊपर चढ़ा दिया मैंने। और टाइम को लिखेंगे सेकेंड्स, ठीक है, 1 सेकेंड। तो मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू, यहाँ पर मोल 1 है और 1 यहाँ पर n है, तो 1 माइनस एन लिख सकते हैं इसको। लीटर को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 1 बाई एस। तो मोल को क्या लिखेंगे, मोल 1 माइनस एन एल n माइनस 1 इंटू एस माइनस 1। ये हमारा यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर का, मोल 1 माइनस एन एल इंटू एन माइनस 1। अगर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पर पुट अप करते हैं तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा k का, यूनिट ऑफ k हमारा ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे किसी भी रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, किसी भी रिएक्शंस के लिए। अगर इफ n इज इक्वल टू 0, इफ n इज इक्वल टू 0 दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। तो हम यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 0 एल 0 माइनस 1 इंटू एस माइनस 1। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स पर सेकेंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए हमारा ये रिएक्शन, ये हमारा यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इफ n इज इक्वल टू 1 रख दें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा इस केस में, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 1, इसमें पुटअप करना है, इंटू एल 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो समथिंग टू द पावर 0 और समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। और अगर इफ n इज इक्वल टू 2, इफ n इज इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या हो जाएगा k का, यूनिट ऑफ k इज मोल 1 माइनस 2 एल 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, मोल माइनस 1 एल सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा। तो इसी तरह हम सो ऑन कर सकते हैं, सो ऑन, और हम लोग इस तरह से यूनिट निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को समझने के बाद हम लोग मॉलिक्युलैरिटी को समझेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या क्लास के सेशन में किया,
तो सबसे पहले हम लोगों ने वेलकम किया। वेलकम नोट के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, केमिकल काइनेटिक्स को समझा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, और रिएक्शन रेट ऑफ मैकेनिज्म के बाद रेट ऑफ रिएक्शंस को समझा कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, और चेंज कंसंट्रेशन को कुछ भी कर सकते हैं, मोल्स, मोलैरिटी और प्रेशर, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को समझा किसी स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसका ग्राफ समझा, ठीक है, और एवरेज रेट निकाला किसी ग्राफ के लिए, और प्रोडक्ट के लिए भी निकाला। रेट ऑफ फॉर्मेशन को समझा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, उसका कुछ एग्जांपल लिया कि रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शंस के लिए भी एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाला। फिर इंस्टेंटेनियस रेट को समझा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के बाद हमारा क्या हो जाता है, ग्राफ में हम लोग का स्लोप जो होता है वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस सीखा। AIPMT मेडिकल 2010 का क्वेश्चन देखा, उसमें किस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं और किस तरह से रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपियरेंस। फैक्टर को देखा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, टेम्परेचर पर, प्रेजेंस पर। फिर डिपेंडेंस पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन को समझा कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पावर होता है, लेकिन रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर निर्भर करता है। लेकिन रेट लॉ में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री, वन स्टेप, सिंगल स्टेप, स्लो स्टेप, तो उस केस में रेट लॉ जो होता है पावर रेज टू एक्टिव मास इज इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। और नहीं तो हमारा क्या होता है, कोई एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे होता है। जब हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होगा तो जैसा रिएक्शन का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही हमारा रेट लॉ होगा। फिर रेट लॉ का हम लोगों ने यूनिट देखा कि रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट ही बोले जाते हैं। ये रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कब बोला जाता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A and B इज इक्वल टू यूनिटी, और व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी, द रेट कांस्टेंट बिकम्स ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। फिर यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट निकाला, फिर 0 ऑर्डर के लिए निकाला, 1 ऑर्डर एंड सो ऑन। तो विद दिस नोट we close this session. So the student who is from Bhagalpur and who is interested for the course, so please contact me, and my contact number and address will be given in the description box. Please subscribe my channel, like and share button को press करना मत भूलिएगा. With this note, thank you, have a good day.